be taking a class on essay writing. Essay is one independent paper and it comes for 250 marks. There are two parts to it. One is section A and one is section B. Combined together, both the marks are 250. Section A has 125, section B has 125. Also, that you should know that there is no difference in the word limits between the two, in the sense that both of them have 1,000 to 1,200 word limit, and which needs to be followed. I regret we started the lesson a little late. There were some technological snaps, and therefore we are 5 minutes late into this essay writing class. I've been wanting to take this class for a long time because one, we need to understand right from the beginning that writing is an essential part of whatever you want to do. So whether it is your GS paper, where your content becomes very important. For some reason, my voice is echoing. If somebody has got their mic on, please put it off. That's just a request because it. Hello, can I be heard? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So I think that echo will continue for me. That's fine. Achha. So what I was saying is that what is essentially. Yes, ma'am. Yes, Okay, ma'am. yes, so the minute you cannot hear me, just say that. This is very unnerving, but all right, it doesn't really matter. We cannot keep on going in and coming out of the class like that because it breaks the thought process. So from 2003 onwards till 2020, I tried to go through the essay topics and summarize them in various categories. A lot of the institutes, like for example, I think Drishti and I think Byju's, also Vision, have done this exercise. They have put all the essay topics in various categories. तो उसको कैटेगरी में डालने से आपको ये समझ में आता है कि कौन से ऐसे टॉपिक्स है जो आपको डेलिब्रेट करने के लिए आए जा सकते हैं. To start again, essay is a reflection or writing of your thoughts, and it is concerning any topic of discussion which has been given to you. तो आपके लिए प्रोसेस ऐसे में क्या होता है? सबसे पहला प्रोसेस आपका होता है कि आप किसी चीज के बारे में रीडिंग करते हैं. बिना रीडिंग के कोई थॉट प्रोसेस नहीं बनता. रीडिंग से क्या होती है? आपकी कुछ थॉट्स आती है और थॉट्स के बाद ही आप राइटिंग कर सकते हैं. ये अपने आप से नहीं आता है, और अगर आता भी है तो आपके व्यक्तिगत कुछ विचार होंगे, उनके बारे में आता है. अगर कोई भी टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, वेदर इट इज globalization, whether it is talking about your communalism or secularism, or it's talking about climate change, none of these thought processes can come to you without having some substance which will come from reading. So what does reading give you? Reading gives you knowledge. तो ऐसे राइटिंग आपकी, मैं एक एक करके आपको बताती जाऊंगी कि ऐसे में आपकी रिक्वायरमेंट क्या है. पर सबसे पहली बात, आपका नॉलेज बेस. इसीलिए कहते हैं कि जो इंसान जितना वेल रेड होता है, जितनी अनइंटेंशनल रीडिंग करता है, एक इंटेंशनल रीडिंग होती है. तो आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स है जिनके बारे में आप कुछ पढ़ते रहते हैं. So you're reading history, you're reading culture, you're reading political science, international relations, current affairs. Everything is adding on to your knowledge. Now, this knowledge makes you reflect and think. Now, when you think and how you think and what concepts you make is the major differentiation between those people or those students who make it and those who don't make it. I don't want to talk about luck here, and I don't want to talk about destiny, but the basic difference between those who are successful and those who are not is something which happens here. Thinking is a cognitive process. If you study it in psychology,
all thoughts emanate from an environment. That environment is necessarily social. आप जिस environment में पैदा हुए पले बड़े हैं वो आपका एक environment है. एक आप जब अपनी एजुकेशन स्टार्ट करते हैं तो वो एक स्कूल का एनवायरनमेंट है. उसके बाद आप अपने एनवायरनमेंट्स चूज करते हैं. So whichever profession you choose or whichever course of specialization you choose, that then becomes your demarcating point कि अब आप इस दृष्टि में सोचेंगे. तो यदि अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट है तो आपको फॉर्मूलाज बनाने में और उनको पोर्ट्रे करना बहुत आसान होगा. तो आप जब जीएस का पेपर करेंगे तो आपके लिए आसान है. किसी ने भी आपसे पूछा कि इसकी क्या, what critically examine about, like we were talking about the other day, I was talking about drones. So I said कि critically examine कि what is the drone technology and how is it is being used. तो drones technology की अगर आप critically examine करेंगे, अगर आप math के student रह चुके या science के student रह चुके तो आप फट से एक diagram बना के कहेंगे कि drone का इतना खर्चा होता है, वो इस काम के लिए उपयोग में आता है, ये उसका loss है, खत्म. A student of humanity will do what? A student of humanity will write in detail कि drones की ये definition है, drones अभी इस प्रकार से इस्तेमाल किए जा रहे हैं और ये उनके बुरे परिणाम है और ये उनके अच्छे परिणाम है. तो ये जो आपकी थॉट प्रोसेस है ये आपके एनवायरनमेंट से बनती है और आप कुछ ना कुछ हर समय सीखते रहते हैं. If you go back to to 1648, 1649, there's a person by the name of और पहले जितनी भी पढ़ाई होती थी वो सब philosophers की होती थी. All subject matters have emanated from philosophy. So there was a guy called Descartes. और आप स्पेलिंग ऐसी लिखते हैं उनके बारे में, पर ये थे Descartes. And what did Descartes say? Descartes says, and this is a Latin expression, cogito ergo sum. आप निकाल के देख लीजिए. Descartes, a philosopher, and he says that, you know, I can deny everything. Everything appears to be a lie. Nothing can be substantiated. He was trying to find out what is the ultimate truth. तो वो कहता है मैं सब चीज डिनाई कर सकता हूँ, सब चीज गलत हो सकती है, पर एक चीज जो बिल्कुल गलत नहीं हो सकती वो क्या है? वो है cogito ergo sum. Cogito ergo sum क्या है? I think therefore I am. That is what the person says. He says I think. I think, therefore I am. I think, therefore I am. So if you are a thinking animal, and which man essentially is, then it means that you are involved, and this is the ultimate truth that he talks about. I am taking you into philosophy because, first and foremost, there are section A and B. अगर आप 2017, 2017, 18, 19, 20 के पेपर सारे आप निकाल के देखिए तो आप एक शिफ्ट देखेंगे. 18 तक section A was doable because section A was very, very emphatic, related to India, more or less economics, a lot about environment, a lot about social issues. And B was your philosophical part. But what is after cognitive? There is nothing after cognitive. He said, cogito ergo sum. I think, therefore I am. Cognitive का मतलब क्या होता है? वो प्रक्रिया जिसके द्वारा आप सोचते हैं. ये एक psychological concept है. Cognition is a thinking process. It talks about what goes in, how it gets processed in your brain, and how it comes out. That is the process of cognition. And because you're a human being, and that is what differentiates you from every other animal, you can reflect upon your cognitive processes. आप सोच सकते हैं कि आप सोच रहे हैं. इसका मतलब simply इतना है कि आप aware हैं कि आप सोच रहे हैं. आप क्या सोच रहे हैं आप उसके बारे में भी अवेयर होते हैं. जब आप ड्रीम के स्टेट में जाते हैं तब आप अपनी सबकॉन्शियस स्टेट में जाते हैं और तब शायद अक्सर आप अपने ड्रीम्स रिकॉल नहीं कर पाते. तो वो सबकॉन्शियस की स्टेट होती है. अदरवाइज कॉग्निटिव मीन्स टू थिंक. द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग इज कॉल्ड कॉग्निशन. हाउ यू प्रोसेस योर इंफॉर्मेशन इज कॉग्निशन. कोई चीज आपने कोई इनपुट ली, कोई स्टिमुलाई आपके दिमाग पर इम्पिंज करती है, तो आपने यदि आपने एक किताब खोली, लाइक फॉर एग्जांपल आपने नानी पालकेवाला का वी द पीपल, ही इज रिटन अ बुक कॉल्ड वी द पीपल, और उसको जैसे ही आप खोलेंगे तो आप सबसे पहले नानी पालकेवाला के बारे में सोचेंगे वो एक जूरिस्ट था.
When you start thinking about a jurist, you start processing information. Who is a jurist? What work does he do? What was Nani Palkiwala all about? और अब आप ये जो सोच रहे हैं, इसके बारे में आप कुछ एक end नतीजा निकालेंगे. There hasn't been any great jurist as good as Shri Nani Palkiwala, or that he is involved and became famous because of the Keshav Bharti case. Some of the things which will now process and come out, and this entire process is called cognition. I hope that I have answered your question, that what is cognition. Okay, so he says cogito ergo sum, and therefore I am. So I'll come back to section A and B. तो 2018 तक तो उन्होंने ये डिमार्केशन बहुत अच्छे से मेंटेन किया, जहां उन्होंने पहले सेक्शन में आपको अपने देश के बारे में पूछा है, बताया कि भारत में ऐसा भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, यदि आप इस तरह का करेंगे तो क्लाइमेट चेंज से आप रेसिलियंस आ सकते हैं, उसका क्या मॉडल हो सकता है. They talked about poverty, they talked about women empowerment. Good enough, you could do those. The second part was always philosophical, and that is why I was going into philosophy. And for some reason, I'm not able to maintain the manner in which I want to explain how to do essay writing, because I keep going back and forth, and I think that will happen in the course of the class. But to come back, you have to know your philosophical ideas, philosophical theory. एक basic theory in a book, इंडियन फिलोसफी की, एक बेसिक थ्योरी आप वेस्टर्न फिलोसफी की लेके देखिए, उसको थोड़ा थोड़ा पढ़िए. फिलोसफी कैन बी हेवी फॉर सम ऑफ अस हु हैव स्टडीड फिलोसफी, इट बिकम्स इजी, बट यू कैन आल्सो compete with it with your good English if you have, or your good Hindi. अगर आपके पास अपनी भाषा पर पूरा का पूरा मतलब आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, और आपके पास जिसको कहते हैं भाषा प्रभाव है, you have a fluency of your language, then writing should not be a problem. But at the same time, there should be a coherence in your expression. आप जो कहना चाहते हैं और जिस प्रकार से कहना चाहते हैं, उस तरीके से वो पेपर पे आना चाहिए. तो अब सेक्शन ए भी फिलोसॉफिकल हो गया है और सेक्शन बी तो फिलोसफी थी. इस वजह से आपके पास एक वर्ल्ड व्यू होना चाहिए. You yourself should have a philosophy. Now let us go into what the essay paper is all about. Like general studies, there you are being measured for your content. मतलब आपके पास कितनी नॉलेज है. ये आपका जीएस का पेपर जो 1-2 है, वो इस बात को टेस्ट करता है. पेपर 3 also. Then paper 4 is about ethics. जब आप पेपर 4 अटेम्प्ट करते हैं, तो जो एथिक्स पढ़ते हैं उसमें आप थोड़ी बहुत फिलोसफी भी पढ़ते हैं, थोड़ा बहुत आप एटीट्यूड चेंज जो साइकोलॉजी का हिस्सा है, आप उसके बारे में भी पढ़ते हैं. You do a bit of sociological perspective also. Ethics has also got to do a lot with public administration. So ये culmination आता है आपके एथिक्स के पेपर में. उसी प्रकार ऐसे में आपका एक कंटेंट तो इंपॉर्टेंट है, जो ऑलरेडी जीएस पेपर आपका चेक ही कर रहा है. कंटेंट के साथ साथ वो आपके थॉट प्रोसेस को एनालाइज करना चाहते हैं. व्हाट यू राइट, हाउ यू राइट इट, what are the arguments that you give, and are you able to substantiate your argument. मतलब आप क्या कहना चाहते हैं, what do you want to say, okay. Then your coherence, how much coherence you have in your arguments, the way you write or present, and how much you are able to substantiate your viewpoint. आप अपने व्यू पॉइंट को कितना डिफेंड कर सकते हैं, इसके बारे में. There was a question, there's one essay topic which has come, is that patriarchy is one of the reasons for the social inequalities in India. Now patriarchy क्या होती है, और आप क्यों सोचते हैं कि वो सोशल इनइक्वालिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है. सोशल इनइक्वालिटी के लिए और भी बहुत सारी चीजें रिस्पॉन्सिबल है. ऐसा नहीं है कि मैट्रियार्की सिस्टम केरला में एग्जिस्ट करती है तो वहां पे इक्वालिटी ऑफ विमेन पूरी की पूरी है, नहीं है. बट वहां पे आप जरूर देखते हैं कि जो आपका जेंडर रेशियो है
या जो सेक्स रेशियो है आपका वो विमेन के फेवर में है। तो एक तो बात एस्टैब्लिश होगी कि कहीं ना कहीं टाइप ऑफ फैमिली सिस्टम्स जो एग्जिस्ट करते हैं इंडिया में वो अफेक्ट करते हैं विमेन एम्पावरमेंट को। बट हैविंग सेड दैट, हाउ डू यू सब्सटैंशिएट? आप कहते हैं कि हाँ, पेट्रियार्की इज वन ऑफ द रीजंस फॉर सोशल इनइक्वालिटी। उसके क्या कारण है? Always there is so much of wasting of girl child before the age of 5. Girls just disappear. Come to the field of education, there is a huge dropout of girls by after the age of 14. Come to child mortality rates, the child mortality rates for female girls is so high. आपने ये सारे points लिख दिए. Then you talk about the male gender in society. उनकी क्या placement है, उनके vis-a-vis women का क्या role हो रहा है. Then you come to that it is not so much about matriarchy and patriarchy, because in today's world most of the things are being governed by economics. So if a woman is earning, yes, there will be XYZ reason. She will be asked to look after the family, she will be asked to do double roles, both family and office. She'd be expected to cook, she'd be expected to clean. This you will write in proper English, not the way I'm saying it. I'm saying it easy for you so that you can comprehend. और ये वर्ड आप फिर से यूज कीजिए, कॉम्प्रीहेंड। इसका क्या मतलब है? द वे यू राइट और प्रेजेंट योर व्यू, इट शुड बी कॉम्प्रीहेंडेबल। मतलब आप जो लिखना चाह रहे हो, जो बोलना चाह रहे हो, वो सामने वाले आदमी को समझ में आना चाहिए। आपके पास कोहेरेंस कब आती है, कंटेंट कब आता है? जब आपने जो पढ़ा उसको आपने ठीक से समझा। ये कोई आइंस्टाइन साइंस नहीं, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग. Like for example, you are doing something on sustainable development. Now you know sustainable development is that you are going to engage in a growth process where you are going to be able to support yourself as well as the future generation. So you're going to use the resources of this earth in such a manner that you grow as well as your future generations also get to use the same resources in the same manner. You know this concept of सस्टेनेबल डेवलपमेंट. अब आप इसके साथ क्या क्या और जोड़ के बना सकते हैं? आप एसडी के साथ क्या क्या जोड़ के बना सकते हैं? दैट यू नीड टू सी. सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ साथ आप और क्या क्या जोड़ रहे हैं? आप जोड़ रहे हैं क्लाइमेट चेंज. उसके साथ साथ आप क्या जोड़ रहे हैं? सोशल इनइक्वालिटीज. उसके साथ आप जोड़ रहे हैं पॉवर्टी. उसके साथ आप जोड़ रहे हैं पॉलिटिकल क्लाइमेट. तो आपके पास एक होलिस्टिक व्यू होना चाहिए अबाउट योर टॉपिक. There should be a holistic view about your topic. So what you want to say, how well are your arguments, what coherence you maintain, the way you present your answer, and how you substantiate or defend your stand on any topic becomes one of the most important part of essay writing. मैं यूपीएससी की गाइडलाइन आपको पढ़ के बताना चाहती हूँ कि वो गाइडलाइन में क्या लिखता है. गाइडलाइन में ऐसे के पेपर में वो लिख रहे हैं, कीप क्लोजली टू द सब्जेक्ट ऑफ द एसे टू अरेंज द आइडियाज. और मैं पूरा कोट नहीं करी तो बीच में से आपको थोड़ा ब्रेक लगेगा. Keep closely to the subject of the essay. So patriarchy is one of the reasons of social inequality in India. Okay? Patriarchy, one concept. Social inequality, second concept. Context is India, आपका देश. तो तीन चीज आपके लिए क्लियर हो गई. आपका जो कैनवस है डिस्कशन का वो भारत है. भारत को ही आपको अपना मूल आधार बनाना है. मतलब भारत देश में क्या हो रहा है ये आपको मेन इसके ऊपर फोकस करना है. Of course you will be comparing it with other countries and trying to establish कि हाँ साउथ ईस्ट एशिया में ऐसा होता है, यूरोप में ऐसा होता है, अमेरिका में ऐसा होता है और न्यूजीलैंड में ऐसा होता है. So you see, you are comparing patriarchy, you are comparing social inequalities, and patriarchy can be just one of the social inequalities with reference to one gender, because it's a conspicuous gender. Women are conspicuous wherever they are conspicuous by virtue of them being another gender. So
that inequality is glaring, but it isn't the overall inequality which exists in our country. Inequality cuts across gender. When we talk about caste, it cuts across the caste system also when it goes into another community, when it goes into another religion. किसी ने कुछ रिमार्क करा, आई एम सो सॉरी, मैं उसको देख नहीं पाई हूँ. आई होप आई कैन बी हर्ड. I think that is most important. बाकी question answers तो हम बाद में भी ले सकते हैं. Somebody said something, but I'm not able to get it. Anyways, so अगर आपके पास ये inequality है, और जरूरी नहीं कि जो टॉपिक पेपर में आया हो exactly मैं वही बोल रही हूँ. मैं आपको ऐसे का टॉपिक अपने आप से मॉड्यूलेट करके भी बता सकती हूँ. वो टॉपिक मैंने वहां से लिया, उसको भी थोड़ा मैं परिवर्तित करके आपको बताऊंगी. अब आपको वो सेम चीज तो आएगी नहीं. Something else will come. So if suppose this is your topic for essay, then this is how you'll be able to attempt it. So UPSC क्या कहता है? Keep closely to the subject of the essay to arrange. Now what you have to do, second part, arrange your ideas in an orderly fashion. आपको coherence होने चाहिए. आपके ideas coherently होने चाहिए. So be close to the subject matter. पहला ये. दूसरा, arrange your ideas in an orderly fashion. And write concisely. मतलब ऐसा नहीं है कि आपने एक सेंटेंस पे शुरुआत करी. Globalization is the breaking up of borders of the world and the countries. It also reflects that there has to be one system of economic governance, that there should be no inequalities in the world. Now, all of these आप and जोड़ करके आपने एक बहुत बड़ा सा सेंटेंस बनाया. इससे आपका ऐसे कुछ भी नहीं कहता है. आपको क्या लिखना है? आपके परिभाषा में ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है? Globalization means the coming of the world together. Full stop. It also means that the existing social inequalities and the differences between the developed and the developing world should subside. That the world needs to come together in a social harmony. तो आपका हर एक आइडिया एक सेंटेंस में आएगा. हर समय याद रखिए कि छोटे सेंटेंसेस ज्यादा प्रभावशाली होते हैं, चाहे वो किसी भी भाषा में आप लिखें. कहीं भी ये नहीं लिखा है कि अंग्रेजी में आप ऐसा लिखेंगे और हिंदी में आप ऐसा लिखेंगे. कहीं नहीं लिखा है. भाषा सब एक होती है, शब्द दूसरे दूसरे हो सकते हैं. आप शब्द का प्रयोग अपनी भाषा के हिसाब से करते हैं, बट the idea, the manner of writing, whether in English or in Hindi, is going to be the same. आपको coherence maintain करना है. आपकी शब्दावली का प्रयोग, मतलब what is the word that you are going to use. Now we come to another part, the vocabulary. तो UPSC आपको कहता है keep closely to the subject matter, arrange your ideas in an orderly fashion, write concisely. मतलब यहाँ आपको 1000 और 1200 के बीच में आपको अपना नंबर ऑफ वर्ड्स फिक्स करना है. तो समझ लीजिए कि अगर जो 250 के शब्द वाले आप क्वेश्चंस लिखते हैं, अगर यदि आप 5 ऐसे सवाल लिख रहे हैं तो उससे आपका एक ऐसे बनता है. तो आपके 5 पैराग्राफ्स मोटा मोटा, दिस प्लीज डोंट टेक इट एज अ फिक्स थिंग. मोटा मोटा आपका जो भी परिभाषा है, जो भी आप कहना चाहते हैं, वो 5 पैराग्राफ्स अगर आपके बने तो 250 शब्द के, या आपने 10 पैराग्राफ्स बनाए 150 शब्द के तो भी चलेगा. बट इट मीन्स दैट यू आर डूइंग 5 to 50 आंसर क्वेश्चंस इन योर एसे. तो आपको सब्जेक्ट मैटर के पास रहना है, आपको कंसाइज रहना है, आपको कोहेरेंस मेंटेन करना है, विच मीन्स ऑर्डरली फैशन, एंड टू राइट कंसाइजली, मतलब कम शब्दों में अपनी बात कहनी है. अब यूपीएससी क्या कहता है? अलग से ये बात कहता है, क्रेडिट विल बी गिवन फॉर इफेक्टिव एंड एग्जैक्ट एक्सप्रेशन. क्रेडिट आपको किस चीज के लिए मिल रही है? इफेक्टिव एंड एग्जैक्ट एक्सप्रेशन. तो ये क्या है? सब्सटैंशिएट योर व्यू पॉइंट. यदि आप कहते हैं कि महिलाओं की जो भी पोजीशन है या स्टेटस इन सोसाइटी बदल रही है, and women are moving towards empowerment, substantiate your answer that earlier they were about 10 or 12%
10% in the 5% if you look in 1952, and today they are almost 25%, at least in the adolescent group, which means that more and more women are coming out of the household and coming into the educational system. अब उनकी मैट्रिकुलेशन की पढ़ाई कितनी हुई है वो भी आपको ये बताएगी. तो आपका बेसिक आइडिया क्या है कि पहले आपने विमेन की स्टेटस को सब्सटेंशिएट करने के लिए उनकी मोर्टेलिटी रेट, वो कितनी जीवित रह पाती है, उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, कितनी जल्दी वो मर जाती है, बिलो द एज ऑफ 5 हाउ मेनी गर्ल चाइल्ड आर लूजिंग देयर लाइफ, फिर उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है. विमेन की लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑल ओवर द वर्ल्ड is more than men, and it is a universal truth because of having two X's on the chromosome. Their immunity is much stronger than men. So that is the reason for the high life expectancy. So women ki life expectancy is not questionable. What is questionable is their mortality. What is questionable is their wasting. What is questionable is their education. What is questionable is the way they are participating in society in terms of economics. How much are they getting paid? They do double the work, they don't get paid for it. Recently, there was a judgment where a woman, it was upheld by the court that a woman should be paid for the work she does at home. Now, that is one way, that is a social instrument of change, and you could say that. You could also say that if you look at it politically, ठीक है, हमने पंचायती राज में औरतों को रिप्रेजेंटेशन दिया, उनको हमने सरपंच बनाया. कई जगह आपने केस स्टोरीज पढ़ी होंगी जहां पे कि उनके हस्बैंड आके ऑफिस में बैठते हैं, whereas the woman is in the home. पर अब ये चीजें बदल रही हैं और उन्होंने बहुत सारी अच्छी स्टोरीज सरपंचेस पे करी हैं on women सरपंचेस which you should read. We will come to that part. तो अभी आपको क्या हो गया, आपको क्रेडिट मिल रहा है इफेक्टिव एंड एग्जैक्ट एक्सप्रेशन के लिए. तो आप अपनी जो भी बात कहें उसको छोटे शब्दों में, कम छोटे सेंटेंस में कहें और एग्जैक्ट डेटा के साथ कहें. जब आप ये काम करेंगे तो आपका ऐसे प्रभावशाली और अच्छा होगा. Now we come to how you go to do about it. तो पहले आपकी हो गई लैंग्वेज. अब लैंग्वेज के लिए आपको बताना जरूरी है, कोई बहुत वर्बोस फ्लारी लैंग्वेज की कोई जरूरत नहीं है, चाहे अंग्रेजी हो चाहे हिंदी हो. What can be said in simple words can never be dealt or be expressed through complicated words. There is no need for big complicated words. Please use very simple and easy words except where you are quoting or where you are defining. तो जो आपकी लैंग्वेज है वो सिंपल होनी चाहिए. It should be coherent. It should have coherence. ऐसा ना हो कि आप कुछ थॉट प्रोसेस पे हैं और वो टूट जाए. हर एक पैराग्राफ एक के बाद एक लॉजिकली फॉलो होना चाहिए. कोई स्कोप नहीं है ग्रामेटिकल और स्पेलिंग, दोनों चीजों का कोई स्कोप नहीं है ऐसे में. यू विल लूज योर मार्क्स बिकॉज ऑफ दिस. सो योर ग्रामर शुड बी प्रिसाइज, योर स्पेलिंग्स शुड बी गुड, वेदर हिंदी और इंग्लिश. मैं इंग्लिश की जो राइटिंग आप लोगों की देखती हूँ, जो लोग लिखते हैं और मुझसे संपर्क में, उनके बारे में मैं बताना चाहूंगी एक जनरल सा रूल, दैट योर प्रेपोजिशंस वेदर फॉर, ऑफ, अंडर is terrible. Your use of articles is terrible. You eat away your articles or you put it where it is not required. I belong to the village or I belong to a village. तो आपको आर्टिकल लिखना जरूरी है. अ और द आर्टिकल्स होते हैं, क्वालिफाई करते हैं आपके नाउन को, उनको आर्टिकल्स कहा जाता है. आपके प्रेपोजिशन क्या होते हैं? प्रेपोजिशंस आपके वर्ब के साथ जुड़ के आते हैं. तो आपको अपनी ग्रामर के ऊपर थोड़ा सा पीछे जाके, जो आपने 7th 8th क्लास में टेंसेस पढ़े हैं कि पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस क्या है, स्पीकिंग आपकी जो है, यदि आप हिंदी भाषा में लिखना चाहते हैं तो हिंदी में भी आप अपना भूतकाल, भविष्य, वर्तमान जैसा भी है उसकी आपको आइडिया होना चाहिए. ऐसा ना हो कि आप हिंदी भी ठीक से नहीं लिख पाए और इंग्लिश भी नहीं ठीक से लिख जाए, जो कि सारे बच्चों में ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है. जो मुझे लगती है कि आपकी भाषा कहीं भी स्ट्रांग नहीं, ना हिंदी में और ना इंग्लिश में. उसका कारण है कि आप लोग रीडिंग पहले कम करते थे, और ये अच्छी बात है कि आपके एग्जाम में अभी टाइम है, तो आप जितना अपना समय पढ़ाई में लगाएंगे, जितना कम बोलेंगे, जितना ज्यादा पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद उस पर रिफ्लेक्ट करेंगे, उतने ज्यादा आपको ऐसे के पेपर में मदद मिलेगी.
What is the idea of taking this class in of essay so early before the preparation starts? One, because normally people don't think that essay is important, और मुझे लगता है कि ये जो 250 नंबर है आपके, ये जीएस के बराबर, जीएस से ज्यादा आपको दे सकते हैं, थोड़ी सी प्लानिंग की जरूरत है। और क्योंकि आप जीएस जब पढ़ते रहेंगे तो उसी में से ऐसे निकल के आएगा, कहीं बाहर से नहीं आएगा। वही नॉलेज जो आप अपने न्यूज़पेपर से पढ़ रहे हैं, मैगजीन से पढ़ रहे हैं, अपने सब्जेक्ट मैटर में पढ़ रहे हैं, उसी को आप एक अच्छा सा शेप देके, अलग सा शेप दे करके आप ऐसे कर सकते हैं। I have been reading a lot of interviews about the people who have come in the top 50. They all have their own ideas about essay, and it is very typically written except for one or two. कईयों के लिए तो उनकी जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है उन्होंने उनके लिए लिख दिया, और जब आप उनको पढ़ेंगे तो आपको वो भी बात समझ में आ जाएगी कि किसी और ने इनके लिए लिखा है। बट आई वुड लाइक टू से कि मैं उनके मूल आधार से एग्री नहीं करती। वो कहते हैं कि आपको एक बहुत अलग सी प्रिपरेशन ऐसे के लिए चाहिए। अलग सी प्रिपरेशन नहीं, पर हाँ थोड़ी सी न्यूआंसेस, मतलब देयर हैज टू बी अ लिटिल बिट ऑफ कटिंग हियर एंड देयर। थोड़ा थोड़ा आप अगर अपने पढ़ने के परिप्रेक्ष्य को जरा सा नजरिया बदल के देखेंगे तो वो आपको ऐसे में जरूर मदद करेगा। जो भी आप पढ़ेंगे वो आपके साथ रहेगा, और जब आप अपना ऐसे लिखेंगे तो वो आपकी मदद करेगा। व्हाट विल हेल्प यू मोर इज टू राइट मोर। I told you there has to be reading, there has to be thinking, and then there has to be writing. और ऐसे आपका तो राइटिंग का रिफ्लेक्शन है, वो आदमी आपको देख नहीं रहा है, वो आपके नॉलेज बेस को टेस्ट कर रहा है, पर वो तो जीएस भी टेस्ट करता है। पर नॉलेज बेस आप अपना किस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं। So you are bringing in along with your knowledge two things more. One is your thought process, how you think, and the second is your value system. Your value system becomes very, very important. And that is why you're getting so many questions on philosophy. Though all these questions on philosophy are a test of what do you think. एक जगह उन्होंने लिखा है, उन्हें what is good for you may not be good for the country. मतलब जो टॉपिक है मैं आपको एग्जैक्ट उसको पढ़ के सुनाऊंगी। आई थिंक 19 या 20 में ही कहीं आया, या 16-17 में कभी है कि what is good for you may not be good for the country, which means that आपके लिए जो वो चीज बहुत अच्छी है वो देश के लिए अच्छी नहीं हो सकती। तो आपके लिए सिविल सर्विस, the first thought which came to my mind was कि आपके लिए सिविल सर्विस बहुत अच्छी है, इसलिए सारे इंजीनियर्स सिविल सर्विस दे रहे हैं। पर देश के लिए ये अच्छा है क्या कि सारे इंजीनियर्स जिसको एक टेक्निकल एजुकेशन दी गई हो, या डॉक्टर्स हो जिनकी इन्वेस्टमेंट इतनी ज्यादा की गई हो एजुकेशन में, उनके संग बहुत सारी चीजें इनपुट में दी जाती हैं, वो सारे रिसोर्सेज वेस्ट हो जाते हैं जब आप एक जनरलिस्ट बन जाते हैं। यू आर अ स्पेशलिस्ट, you have qualified as a specialist in society, but now you are becoming a generalist when you qualify your UPSC. So is that fair for the country? So that is the first thing. आपके लिए बहुत जरूरी है कि आपके पास ढेर सारे पैसे होना चाहिए। इस वजह से आप अलग अलग तरीके से पैसे बनाते हैं, पर क्या ये देश के लिए अच्छा है? The greatest good of the greatest number. अगर आप सोशल इक्वालिटी में बिलीव करते हैं, और सोशल इक्वालिटी कूट कूट के हमारे संविधान में किसी ना किसी प्रकार से प्रेजेंट है, तो अगर आपके देश की सोच है, तो आपकी जो जितनी भी आप अपनी संपदा बढ़ाना चाहते हैं वो देश के लिए अच्छी नहीं है। आप अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बढ़ाना चाहते हैं, बट इट विल लीड टू अ ग्रेटर राइज ऑफ इनइक्वालिटी। आप अपने सारे एम्बिशंस फुलफिल करना चाहते हैं, आप अपने रिसोर्सेज को पूरी तरह जो भी है आप उसको खरीदना चाहते हैं क्योंकि आपके पास बाइंग पावर है, बट क्या ये देश के लिए अच्छा है? आप एसी एनवायरनमेंट में पूरे टाइम बैठना चाहते हैं, बट आप क्या ग्लोबल वार्मिंग इस तरह रिड्यूस कर पाएंगे? क्या ग्लोबल वार्मिंग इस देश, हमारे देश के लिए जरूरी नहीं कि हम ग्लोबल वार्मिंग को कम करें, या हम कार्बन एमिशंस करते हैं और अभी मोदी जी कहते हैं हम 2070 में जाके कार्बन एमिशंस को जीरो करेंगे, और हमें कहा जा रहा है कि आप पेरिस एग्रीमेंट तुरंत के तुरंत साइन करिए, which means that we are bound by 2030 to cut down on our carbon emissions. So as a citizen of this country, are you not responsible for the goodwill, for the greatness of your nation? तो वहां पे कहीं ethical values, आपकी value system जो आप अपने कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए सोचते हैं, वो कहाँ वहीं पर आपसे पूछी जा रही है। तो आपका एक नॉलेज बेस हो गया, एक आपकी लिखने की प्रक्रिया होगी,
और एक आपका जो वैल्यू सिस्टम है वो क्या है, उसको भी ये ऐसे जांचता है। और ये 250 नंबर आपके कहीं नहीं जाने वाले, यदि जब आप पढ़ते रहे और उसको रिफ्लेक्ट करते रहे और कहीं छोटा छोटा लिखते रहे, तो उससे आपको आइडिया आ जाएगा कि मुझे कैसे लिखना आना चाहिए। जो लोग नए हैं और जिनको लिखना अभी बहुत अच्छे से नहीं आता, उनको मैं ये बात सजेस्ट करना चाहूंगी कि आप पहले पॉइंट वाइज लिखना शुरू करिए। जीएस का कोई भी क्वेश्चन बहुत डिफाइंड होता है, आपको पता है कि ये इसका कंटेंट है, कंटेंट वाइज आपको ये आंसर लिखना है। आप पहले 1 2 3 4 5 करके पॉइंट्स लिखिए। जब आप पॉइंट्स लिख करके, मतलब शॉर्ट सेंटेंसेस लिखने में आपने एक कामयाबी हासिल कर ली, यू बिकम गुड इनफ नाउ टू फ्रेम योर सेंटेंसेस प्रॉपर्ली, then move to the next step of writing coherent paragraphs. This is for those students who have suffered in their secondary education, जिनकी स्कूलिंग अच्छी नहीं हुई है, ये उनके लिए। जिनकी स्कूलिंग अच्छी है वो सीधे पैराग्राफ पे जाएं, और यदि आपको लिखने का शौक है, I would suggest write something every day. Write a poetry, write a few lines, write about your thoughts. जो आपको ब्रेन कहता है कि आप डायरी लिखिए, वो ये क्यों कहता है? क्योंकि वो आपको मदद करेगा इस ऐसे के पेपर को लिखने के लिए। फिर उनके कहने कि आप स्पेलिंग और ग्रामेटिकल एरर कुछ नहीं करेंगे। तो एक आपका लैंग्वेज हो गया, एक आपका कोहेरेंस हो गया, एक आपकी ग्रामर और स्पेलिंग हो गई, और फिर आपकी हो गई रीडिंग। रीडिंग में आप फिक्शनल तो ठीक है, बट आई वुडंट एडवाइज यू टू रीड पल्प फिक्शन व्हेन यू आर डूइंग यूपीएससी. Pulp fiction is all those, all those murder stories and stuff like that. Don't read that for some time. It won't help you. आपको ब्रेक चाहिए अपनी पढ़ाई से, और आप 15-16 घंटे पढ़ रहे हैं और तब ब्रेक ले रहे हैं, तो समझ में आता है. Otherwise, no. Reading should be non-fictional. Fictional if you are fond of reading. Otherwise, no. अभी आपको क्या करना है? नॉन फिक्शनल रीडिंग करना है. आपको न्यूज़पेपर की रीडिंग करनी है. टाइम्स ऑफ इंडिया सबके पास आता है, जिसके पास नहीं आता है टाइम्स ऑफ इंडिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप कहीं भी गूगल करके देखिए, देयर इज वन थिंग विच कम्स विच इज कॉल्ड द स्पीकिंग ट्री. आप देखिए एडिटोरियल के नीचे टाइम्स ऑफ इंडिया के बीच पेज में आता है स्पीकिंग ट्री. मैं चाहती हूँ कि हर बच्चा जो ये इस इम्तिहान को अटेम्प्ट कर रहा है वो स्पीकिंग ट्री को पढ़े. और इंग्लिश में ये लिखा जाता है, इसका हिंदी अनुवाद भी है. इसकी पूरी एक बुक है द स्पीकिंग ट्री, उसमें सारे पिछले आर्टिकल्स हैं. It is one of the best books for you to read when you try to attempt this essay. In fact, I won't be wrong in suggesting कि जो ये स्पीकिंग ट्री है ये बहुत हद तक रिस्पॉन्सिबल है इन ऐसे के टॉपिक्स के लिए. अगर आप स्पीकिंग ट्री शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, and some of us have been reading the speaking tree for a long time, तो आपको कभी भी कोई टॉपिक समझने में दिक्कत नहीं आएगी. So you must read the speaking tree. कई बार आप देखते हैं कि एक स्पेशलाइज्ड टॉपिक आ जाता है, लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. So we had one student who had come for coaching for the interview to Margdarshan, and she said that she did something on artificial intelligence, और उसके लिए she had read this book which is called the Humoduma, whatever that name is. उसने कहा कि मैंने इसको पढ़ा था. I'm forgetting the name of the book. It will come back to me. मैंने कहीं लिखा हुआ है उसको. मैं उसका नाम आपको लिख कर दूंगी. तो यदि आप कोई भी स्पेशलाइज्ड टॉपिक अटेम्प्ट करते हैं ऐसे में, एंड वी विल कम टू कि आप क्या टॉपिक चूज करेंगे अपने ऐसे के लिए, वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताती हूँ. पर उसका नाम था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. सो आई एम टेलिंग यू टू रीड द स्पीकिंग ट्री. आई एम आस्किंग यू टू रीड नॉन फिक्शनल. आई एम आस्किंग यू टू रीड द न्यूज़पेपर. एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जब क्वेश्चन आया तो अपूर्वा सेड दैट शी वाज रीडिंग दिस बुक, युवल हरारी's Homo Deus. She said she was reading Homo Deus because she wanted to attempt to understand artificial intelligence, because उसकी एक one of her hobbies was reading. तो वो इसको पढ़ना चाह रही थी क्योंकि इसमें एक ऐसे है जो स्पेसिफिकली मेंशन करता है कि why artificial intelligence is not good in economic terms, that it is going to eat into the jobs of our younger generation. तो अगर आप कोई स्पेशलाइज्ड टॉपिक लेते हैं तो आपके पास इस तरह की एक रीडिंग होनी चाहिए. यू शुड बी वेल रेड अबाउट दैट. फिर आपके पास जो है, there are certain magazines
मैगजीन रीडिंग आपकी होनी चाहिए। इसमें से मैगजीन रीडिंग में आपके पास कुरुक्षेत्र आती है, एक आपका इकोनॉमिक सर्वे है, एक आपकी योजना है। All these will give you the economic parameters for the essay topic। और हम थोड़ी थोड़ी ऐसे आपको बताएंगे कि किस किस हेड में ज्यादा आते हैं, बट ये सारी आपको अपने देश के बारे में चीजें बताएगी। Then I feel that for international relations, World Focus is a very good magazine। आप कुछ तो इसके एडिटोरियल्स प्लीज पढ़िएगा, they are very good, they are very current। और शायद आपके इम्तिहान के आसपास उसके 6 महीने पहले की अगर आप वर्ल्ड फोकस उठा के पढ़ेंगे तो आपको बहुत मदद मिलेगी। Then there is a book on environment which is called Down to Earth। This magazine Down to Earth is again very good so far as the environment is concerned। It gives you a good insight about your environment। There is of course nothing to replace your newspaper। कोई भी ऐसे का टॉपिक आपका करंट से किसी ना किसी प्रकार से रिलेटेड होगा, चाहे वो फिलोसॉफिकल क्यों ना हो। अब मैं आपको एक और चीज बताना चाहती हूँ। आफ्टर द मैगजीन्स यू नीड टू लर्न प्रोवर्ब्स एंड इडियम्स। जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स है वो प्रोवर्ब्स और इडियम्स जानते होंगे। प्रोवर्ब क्या होता है? प्रोवर्ब इज अ saying like, you know, what should I say, just everything which has some kind of a parable। जैसे हमारी पुराने टाइम्स में पंचतंत्र स्टोरीज हुआ करती थी, वो कुछ कुछ आपके प्रोवर्ब्स की तरह होती है। तो whenever you are talking of something which has a philosophical bent, which is trying to teach you a lesson, that is called a proverb। What is an idiom? An idiom is a saying, it's a phrase। मतलब कुछ शब्द एक संग जुड़ के बनाए गए हैं जिनकी कोई मीनिंग होती है। तो a stitch in time saves 9। मतलब अगर आप सही वक्त पे कुछ काम कर लेंगे तो आप और 9 विपत्ति से बच सकते हैं। Birds of the same feather flock together। जो उनकी प्रवृत्ति एक ही प्रकार की होती है वो एक ही साथ चलते हैं। इस प्रकार से जो प्रोवर्ब्स है, स्पेशली इडियम्स तो आपकी भाषा को सुधारेंगे, पर जो प्रोवर्ब्स हैं, प्रोवर्ब्स को आप ध्यान से पढ़िए। आप प्रोवर्ब्स को पढ़ेंगे तो जो फिलोसॉफिकल आपके एसेज आते हैं उनको आप अटेम्प्ट जरूर करेंगे। अब वी विल कम टू व्हाट कैन बी अ गुड चॉइस ऑफ अ essay topic। What will be your choice of an essay topic? इसमें सबकी सहमति एक ही है, आप वही ऐसे का टॉपिक चूज करिए जिसके बारे में आप जानते हैं। अगर आप नहीं जानेंगे तो एग्जामिनर आपको पकड़ लेगा, आप उसमें झूठ नहीं बोल सकते। यहाँ पे कोई गुंजाइश नहीं है टू यू नो टू राइट लाइक द प्राइम मिनिस्टर सेज मन की बात। आप यहाँ गैरी लुइस नहीं हो सकते। यू कैनॉट wean and meander like a river in its middle course। मिडिल कोर्स में रिवर मियांडरिंग क्यों करती है? क्योंकि बहुत सारा वो सिल्ट लेके माउंटेन से आती है और तब तक डिपॉजिट नहीं कर पाती। तो जैसे ही प्लेन्स में पहुंचती है रिवर जो है इस प्रकार से चलने लगती है, तो इट मूव्स इन वेव्स। दिस इज कॉल्ड द मियांडरिंग ऑफ अ रिवर। तो आप मियांडर करेंगे अगर अपने ऐसे में तो आप लिख नहीं पाएंगे और आपको ऐसे में कोई नंबर नहीं मिलेगा। यू हैव टू बी स्ट्रेट एंड स्टेडी। सो नो meandering is allowed, नो मन की बात। आपके मन की बात का यहाँ कोई तूल नहीं है। आप क्या सोचते हैं वो किस प्रकार से किसी थ्योरी से रिलेटेड है या किस प्रकार से रियलिटी या एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। यू थिंक and this is what I say is they have said one of the topics for discussion was, let me pick up a topic for you, then I think it'll be better। Life is a long journey between human beings and being humane। अब human being आप जानते हैं, अब humane की परिभाषा क्या हो सकती है आपके लिए? Between being human, human being and being humane। अब ये philosophy तो है, पर इसमें there is a lot of economics in it। Life is a long journey between human being and being humane। So human being is a homo sapien, that's what a human being is। He's a thinking animal। So cogito ergo sum, I think therefore I am, that's a philosophy, that is the ultimate truth। अब humane क्या हो जाता है? Humane has an element
of value in it. It has an element of what is called humanism. It belongs to the holistic group of thoughts. तो आप जब भी कोई चीज ले तो या तो आप उसकी फिलोसफी से पूरी तरह कन्विंस्ड हो, पूरे वेल रेड हो, तब आप ये टॉपिक ले. या again, this is a proverb, but they have put it in terms of a in terms of a statement. Ships do not sink because of water around them. Ships तो पानी में ही रहती है, तो वो कभी भी पानी की वजह से नहीं सिंक करती. कब सिंक करती है? Because of the water that gets into them. तो water कब होता है? जबकि शिप के अंदर छेद होता है. तो आप हारते कब है? जब आपका अपना जानने वाला, अपना पहचान वाला कुछ आपके ऊपर आपको हानि पहुंचाने की कोशिश करता है, या आपको वहीं पे सबसे ज्यादा आप क्षतिग्रस्त होते हैं जो आपका वीक पॉइंट होता है. यदि कोई वीक पॉइंट को करेगा तो आप उससे क्षतिग्रस्त हो जाएंगे. सो यू मस्ट फर्स्ट अंडरस्टैंड कि क्या ये सेंटेंस, ये जो स्टेटमेंट है, टॉपिक है, ये क्या कहना जा रहा है. तो ये जो ह्यूमनिस्ट, जो पहला वाला टॉपिक था, वो ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ फिलोसफी को बुलंद करता है. तो if you have read people like Carl Rogers, or if you've read people like Maslow, these are the thinkers who will talk about in psychology. And otherwise also they've written a lot of papers. Like Maslow has written about achievement, the achieving society. He talks about that, and he talks about the various kinds of needs that humans have, and the highest need is that of self achievement. जब आप खुद अपने आप को एक अचीवमेंट मान लेते हैं, आपने जो अपने लिए वैल्यूज रखी हैं वो आप मान लेते हैं, तब आप एक पूरे ह्यूमन बन जाते हैं. तो ये brings to the concept of intrinsic and extrinsic motivation. जब तक आप ह्यूमन बीइंग है, आप एक्सट्रिंसिकली मोटिवेटेड हैं. कोई बाहर की चीज है जो आपको आकर्षित करती है. तो अगेन मीन्स एंड एंड्स वाली जो आपकी फिलॉसफी है वो इसमें काम आती है. तो दैट इज योर ह्यूमनिज्म. The second part of it is ship is supposed to be sailing in water and it never sinks because of the water around it. मतलब जो भी आपकी प्रॉब्लम्स आपको सराउंड करती हैं, आप उस वजह से कभी भी डूबते नहीं है. जब आपके खुद आपका अपना कोई जो जानता है आपकी वीकनेस को, उसको छेद कर देता है, या आपके अंदर की खुद की वीकनेस आपको डुबो देती है. दैट इज द आइडिया. तो आप कितने, सो इफ यू बिकम करप्ट बिकॉज यू थिंक मनी is your ultimate goal in life, so you become corrupt and you take on to that path. Once you take on to that path, there is no end to it. So when you are writing about your essay, be very clear कि आपको उसके बारे में पूरी knowledge है. So choice of topic should be what you know about. फिर मैंने आपको एक टॉपिक बताया था, patriarchy is the least noticed yet the most significant structure of social inequality. जब आप ये टॉपिक करेंगे तो आपको सोशल इनइक्वालिटीज के बारे में पता होना चाहिए. मैंने आपको इसमें ऐड कर दिया फॉर आवर कंट्री, फॉर इंडिया. आप इसको वर्ल्ड पर्सपेक्टिव में भी देख सकते हैं. हर जगह पेट्रियार्की है क्या, कि कहीं मेट्रियार्कल सोसाइटीज भी है क्या? तो पेट्रियार्की कॉन्सेप्ट इज अ सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, बट व्हेन वी यूज इट in the society other than the social structure, then what becomes of it? And is inequality only related to gender? Inequality is related to so many other things. It's also related to distribution of resources. It's also related to the type of governance, whether we are into a capitalistic mode of society, whether we believe that no, the greatest good of the greatest number is not what we are striving for, but or are we moving towards an oligarchy? ये कितने economic systems है world के, वो आप अपने सोच में लाएंगे. अच्छा, समय आपके पास 3 घंटे का रहेगा, तो आपको ऐसा नहीं करना है कि ए तो आपने बहुत सुंदर अच्छा लिख लिया जिसमें आपको करीब करीब 140 नंबर मिल गए, एंड पीपल स्ट्राइव फॉर a 50% cut off for essays is considered to be very good. Some children get 155 also, some get 160 also, but आप अगर अपने को अच्छे से ऐसे में नंबर चाहते तो 125 to 130 is a very good score. But अगर आपको एक में मान लीजिए 140 मिल गया और दूसरे में आपको सिर्फ 100 मिल रहे हैं, तो भी आप 500 में से तो आपका जो एवरेज स्कोर है वो नीचे गिर गया. तो जो आपका 3 घंटा है उसमें 1.5 घंटे पहले टॉपिक के और 1.5 घंटे दूसरे टॉपिक के, क्योंकि नंबर दोनों के सेम है. इसलिए आप अपना समय अच्छे से इस्तेमाल करें, पहली बात. दूसरी बात,
पहले ऐसे स्टार्ट करने से पहले सारे ऐसे ठीक से पढ़ लीजिए, जिस पे आपने फोकस किया उसका एक स्केलेटल बना लीजिए कि आप इसमें क्या क्या लिखना चाहते हैं। जब आप वो स्केलेटल बना लेंगे तो आपका फ्लो अपने आप आता रहेगा। Put in a good 10 to 15 minutes on reflection before you start writing. Writing will not take much of your time. You get used to writing. जब आप यूपीएससी की प्रैक्टिस करें तो लिखना तो आपको आ ही जाएगा। आप अपने नोट्स बनाते हैं, आप जीएस पढ़ते हैं, उसको लिखते हैं, तो आपको लिखना आ चुका रहेगा, आपको समय नहीं लगेगा ज्यादा। पर जो आप समय अपने थॉट्स को गैदर करने में लेंगे, वो ही अल्टीमेटली आपके ऐसे में दिखेगा। तो वो थॉट्स को, बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में एक बार में आएंगी, पर आप उनके बारे में क्या क्या लिख सकते हैं, यहीं पर हाउ वेल रेड यू आर, बट मोर देन दैट हाउ मच यू हैव रिफ्लेक्टेड ऑन इट और हाउ मच यू थॉट अबाउट इट विल हेल्प। तो आप जो रिफ्लेक्शंस करते हैं वो आपके अब मदद करेगा। तो आप उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करिए और फिर उसके बाद आप लिखना शुरू करिए। अब देयर इज अनदर कॉन्सेप्ट ऑफ there can be no social justice, and I repeat, there can be no social justice without economic prosperity, but economic prosperity without social justice is meaningless. जितने बच्चे डिबेट्स और एलिक्यूशंस में पार्टिसिपेट करेंगे उनके लिए ये प्लस रहेगा इस ऐसे के पेपर को अटेम्प्ट करना। दिस आई एम टॉकिंग फ्रॉम माय ओन पर्सनल एक्सपीरियंस। आई हैव बीन डूइंग डिबेट्स एंड एसेज ऑल थ्रू आउट माय करियर. So, I mean, as far as my schooling was concerned, so you find me very easy with words, you find me very easy with writing because it happens. आप अपनी स्क्रिप्ट लिखते हैं डिबेट की, तो आपको मदद मिलती है कि आप अपने आइडियाज कैसे अपने अपोनेंट के लिए प्लेस करेंगे। तो you also, if you participated in debates, great, no issues. If you've not, you can still start writing your arguments for and against. And now we come to the point of how much of what to write. What to write. आप फॉर एंड अगेंस्ट होकर के कभी भी कंप्लीटली, आई रिपीट इट, फॉर एंड अगेंस्ट होकर कंप्लीटली आर्ग्यूमेंट्स प्लेस कीजिएगा, बट दे शुड बी बैलेंस्ड. सो यू से दैट विमेन आर इंप्रूविंग, बट एट द सेम टाइम उनका रिप्रेजेंटेशन अभी तक पार्लियामेंट में 12% है. So you have a defense minister, you have a minister for revenue who is a lady. That is fine. आपकी जो ministry है वो budget एक lady minister present कर रही है, but तभी भी overall representation women का parliament में सिर्फ 12% है. तो ये क्या स्पीक करता है? It's, and this 12% has been maintained over centuries. So what is your argument for it? Your argument for it is that yes, things are changing, but they are changing very slowly. What would happen if women were overrepresented in the parliament? We could have had a silent revolution like the Panchayati Raj. So the changes that you see in the villages where women get represented even in small groups of social forestry is happening because we have empowered them. So if we empower them enough and give them a representation in the parliament, this 12% will increase. But at the same time, like I said, that their participation in economics is increasing manyfold. Their study level in matriculation is increasing manyfold. Some of the states in India are now having a gender ratio or which is in favor of women. So all these small revolutions are taking place. अगर आप जल शक्ति अभियान देखिए तो उसमें बहुत हद तक महिलाएं अच्छे से पार्टिसिपेट कर रही है. तो जब भी आपसे एक स्टैंड लेने को कहा जाए, फॉर आप स्टैंड लीजिए, बट फॉर उसके लिए आप अपना नोशन फॉर भी लिखिए और आप अगेंस्ट भी लिखिए. तो आप कैपिटल पनिशमेंट, जैसे किसी ने आर्ग्यू किया, मैं मॉर्निंग में डिस्कस कर रही थी, यूथनेसिया इज द राइट टू डाई. Supreme Court says that you do not have the right to die. You have the right to life, and the society is compelled to protect your life. तो यूथनेसिया आप क्या लिखेंगे? सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी कह चुका है कि आपको राइट टू लाइफ किसी की लेने के लिए you do not have
the court cannot give you a legal right to kill anyone or to put anyone to sleep, or you cannot, you cannot be permitted to commit suicide. That is the concept of euthanasia. But at the same time, you can say that there can be exceptions to this. Euthanasia means somebody is on a ventilator for 5 years at a stretch, and the family cannot support it, and it is eating into the resources of the family. Then the condition of that patient, kaisa hai? Will it be better to put that first person to sleep, to take him off the ventilator? After all, आपने कोविड की सिचुएशन में देखा कि हमारे रिसोर्सेज कितने लिमिटेड है, तो we can think about it and write. Same for capital punishment. आप capital punishment के फेवर में लिखेंगे कि किसी को आपको फांसी देना ही चाहिए, मार ही देना चाहिए, depending upon the kind of crime that person has committed. इसके लिए आप अपने rules code करेंगे, case histories code कर सकते हैं, but ultimately you will say that capital punishment should be abolished because it is not proper that we should lose lives. Any amount of crime which is being committed by a person. So from human being, you have to move towards humane. So from human being, you have to push yourself to inhuman. Somewhere your argument should have a balance, like artificial intelligence. तो अगर artificial profiles खा डालेगी, तो क्या should we not going for robotics? There is some great amount of good work being done by robots. So you have a whole lot of medical surgeries which are being done precisely by a robot. So we should have robotics, we should have artificial intelligence, but like everything else, it should be in harmony, it should be in control, it should be balanced. तो जैसे आप हर चीज में balance की बात करते हैं, जो कि हमारी इंडियन फिलॉसफी में बहुत दिन से चल के आ रहा है, तो आपको यही बैलेंस मेंटेन करके आगे रखना है. That is one of the good things. So what you choose to write, you should have a complete knowledge about that. Your knowledge will choose your subject matter. Get used to reading stories, true stories. अगर आप हिंदी मीडियम से में लिखेंगे इसको, तो आपको you should be well read about मुंशी प्रेमचंद because his stories are related to the milieu in the village. बहुत अच्छा इसके बारे में लिखते हैं. आप कई सारे poets हैं आपके, जैसे दिनकर, जैसे सुभद्रा कुमारी चौहान, all these अटल बिहारी वाजपेयी, very good writers. आप इन सारे poets को पढ़िए, इनके कबीर के दोहे, little of stuff which you've done in school, but वो books of poetry आपके पास होगी, short stories हुआ करती थी हम लोग के स्कूल में, आप उनको फिर से वापस से पढ़िए. जब आपको फ्री टाइम लगे कि अब मैं और कुछ नहीं पढ़ सकता, पढ़ सकती, then you should pick up these books and then you should read it. कोई भी अगर मान लीजिए नॉन फिक्शन लिखता है किसी भी पेज पर, आप अपना पेज बनाइए, आप उस पे लिखिए. अगर आप अच्छी कविता लिखते हैं तो कविता एक तरह से आपके इमोशंस को एक्सप्रेस करती है, आपके बारे में आपको बताती है कि आपके अंदर क्या चल रहा है, आप उसको भी लिखने की कोशिश करिए, तो आपकी शब्दावली भी बढ़ेगी, आपको लिखना भी अच्छे से आएगा, and it will help you to gain those marks in essay. In fact, the new buzzword is कि आपका optional कैसा जाएगा ये बहुत आपके हाथ में नहीं है, GS कैसा जाएगा बहुत आपके हाथ में नहीं है, but a lot of people who are there in the top 50 are doing exceptionally well in essay and in the fourth paper of ethics. So ethics and essay, two things which will require a different kind of reading, but at the same time will help you grow. मतलब थोड़ा सा आपको philosophy ये bend of mind, वो दोनों के साथ साथ, like उन्होंने कहा है, एक इनका टॉपिक है ना, टेक्नोलॉजी एज द साइलेंट फैक्टर इन इंटरनेशनल रिलेशंस. अब टेक्नोलॉजी कौन कौन सी हो सकती है? आपकी ड्रोन टेक्नोलॉजी हो सकती है, आपकी फाइटर जेट्स की टेक्नोलॉजी हो सकती है, आपकी मिसाइल टेक्नोलॉजी हो सकती है, आपकी एग्रीकल्चर में स्प्रिंकलर्स की टेक्नोलॉजी हो सकती है, आपका फॉर इलेक्ट्रिसिटी, फॉर एनर्जी सेविंग आपकी इलेक्ट्रिसिटी हो सकती है, आपकी इंटरनेशनल रिलेशंस हो सकते हैं. तो दे सेड दैट technology development in any part of the world is the silent factor in international relations. Now, you know who are they aiming at? They are absolutely pointing to one country, which is China.
the technological know-how of this country and the way it has gone into mass production and the way it has let its technology cover the rest of the world. You cannot do away with China. You cannot dismiss China. तो इस संदर्भ में इन्होंने ये इट इज लाइक अ सटायर कि टेक्नोलॉजी इज द साइलेंट पार्टनर इन इंटरनेशनल रिलेशंस. तो हम कितना भी हल्ला करें कि चाइना ऐसा है, हमको चाइना से संबंध नहीं रखना, चाइना के प्रोडक्ट्स हम नहीं करेंगे, हम आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे. अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऐसे टॉपिक फॉर दिस इयर्स essay writing. I don't know if anybody will be writing the mains this year, but this is a very good essay topic for this year. That is your आत्मनिर्भर भारत. हमारे जो 75 साल इंडिपेंडेंस के हुए हैं उसमें भारत का अमृत महोत्सव. Now that is something which will come in one form or the other. किसी भी क्षेत्र में ये आएगा ही आएगा as a essay topic क्योंकि it is being talked of so much. Suppose that you prepare for it this year and for next year you say ये तो नहीं आएगा. But whatever input you put in here, you will get the fruits of it next time in some form or the other. क्योंकि देश तो एक ही है और उसमें सारी चीजें एक पार्ट दूसरे पार्ट से रिलेटेड होता है. तो now coming to the part of what knowledge based आप subject matter लेंगे. Now I want to reflect on this before I call it a day क्योंकि 1 घंटा हो चुका है and we were thinking कि हम बहुत जल्दी से ऐसे कि वो खत्म कर लेंगे. But I want to give you some way of writing your essay. एक तो आपके essay में एक introduction होना चाहिए. Introduction कोई quotation हो सकता है, introduction कोई story हो सकती है. Quotation अगर आपको नहीं याद है तो आप मत लिखिए, आप अपनी कोई भाषा में अपनी कोई story बना लीजिए, उसको लिखिए. तो आपका एक introduction should be nice and bright. It should never be depressing. It should never be negative. It should always be positive. So you start writing on a positive note. Then there will be a body. अब जब body आपकी होगी तो एक पैराग्राफ दूसरे पैराग्राफ से लिंक्ड होना चाहिए. तो अगर आप ग्लोबलाइजेशन की बात करेंगे तो you will say there are theories of economics and politics behind globalization. The political scenario is like this. तब आपने वो इस सेंटेंस से अपना पहला पैराग्राफ कंक्लूड किया कि there are economic and political ideas behind globalization. Political ideas like this will be your next paragraph. तो या आप एक क्वेश्चन मार्क पे करिए that the economic inequalities of society are being shaped by caste. आपने वहाँ पे क्वेश्चन मार्क किया and then you can start writing in the next paragraph. The caste system is all pervasive in our country or in India. You should also always remember कि आप जिस सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं, ऐसा ना हो कि वो लगने लगे पेपर में कि आप अपना सब्जेक्ट लिख रहे हैं rather than the essay topic. तो अगर जैसे आप you are a student of history, पता चला आप नेशनल मूवमेंट के बारे में ही सारा लिखते रह गए, जबकि वो पूछ रहा है आपसे कि इंडिया एज अ सोसाइटी हैज प्रोग्रेस्ड. तो आप पहले नेशनल मूवमेंट में लिखने शुरू किया कि हमने वो भारत की आजादी हासिल करी, अब आप इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पे चले गए 1948 से, और आपने जब तक में ऐसे अपना खत्म किया तब तक में आपने दो पैराग्राफ तो इंडिया की इंडिपेंडेंस मूवमेंट पे लिख डाला. इट शुड नेवर हैपन लाइक दैट. You should give a few lines of introduction, make a historical reference to it, and then bring it to your logical conclusion. Again, conclusion should end with some sort of quotation, some sort of story, some sort of proverb or an idiom or some Sanskrit shlok. It can be anything, but it should be related to the topic at hand. आपका जो introduction है और जो आपका conclusion है, वो सबसे important है. मैं आपको अगर ये कहूं कि आप अपना इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन पहले बहुत समय दे के सोचिए और फिर बीच के हिस्से लिखिए, तो मैं बहुत गलत नहीं कहूंगी, क्योंकि आपके जो आपका 150 नंबर है, आपके जो 125 मार्क्स आपको जो दोनों में से मिलेंगे 250 जो भी आपका ब्रेकअप आ रहा है उसके हिसाब से आपको जो भी एवरेज मार्क्स मिलेंगे, उसमें इंट्रोडक्शन कंक्लूजन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. Now, if you take a topic of economics or you take a topic of sociology, जो social parameters हैं, या आप कोई relevant current affairs का topic लेंगे, it's very easy कि आप उसका social dimension, उसका political dimension, उसका economic dimension और उसका future progress. So you are going to analyze a topic
socially, politically, economically, and future. और इसके साथ आप थोड़ा सा हिस्टोरिकली, योर हिस्टोरिकल पोर्शन शुड नॉट ओवर एक्सटेंड. आप इस फ्रेमवर्क में अपने आर्ग्यूमेंट्स, अपने व्यू पॉइंट लिखने की कोशिश करिए. अगर आप कोई सोशली रेलेवेंट, सोशली रिलेटेड, इंडिया से रिलेटेड, करंट अफेयर्स से रिलेटेड, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, या इनमें से किसी भी टॉपिक अलग भी है अगर, तो उसमें ये सारी चीजें जरूर से आनी चाहिए. ये बातें आप अपने ध्यान में हर समय रखिए. कभी भी कोई एक्सट्रीम चीज कहने के लिए अवॉइड करिए. सो डोंट डू दैट. अगर कोई चीज, कोई टॉपिक स्पेसिफिक है, जैसे स्टैंडर्ड टेस्ट आर अ मेजर ऑफ इंटेलिजेंस. अब इसमें स्टैंडर्ड टेस्ट है, जो साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स है वो सब जानते हैं कि स्टैंडर्ड टेस्ट होते हैं. So you have your Rorschach test, you have your test of intelligence, you have those battery, the Wechsler scale test. जिनको पता है वो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, उनको बहुत सारे नंबर मिलेंगे. और जरूरी नहीं कि हर बार साइकोलॉजी का टॉपिक, मैं तो पहली बार साइकोलॉजी का टॉपिक देख रही हूँ, अदरवाइज जनरली साइकोलॉजी के टॉपिक्स नहीं आते. Most of it comes from sociology, most of it comes from economics. You have a good stand of it. I just want to give you a short read of the topics which have come, और हमारा जो उसके बारे में ब्रेकअप है. यदि आप इन हिसाब से इसको देखेंगे तो आपको मदद मिलेगी. तो जो हम लोग ने अगर आप if you're going to look at it topic wise, so we have done an analysis for almost from 2007 onwards. तो अभी तक आपको अपने देश के बारे में 30 टॉपिक्स मिल चुके हैं. There are 30 topics which are directly related to India, which also means that if you study about your country, you are sure going to be somewhere in that essay for your marks. Then there is society and culture. Society and culture does even better than India. So society and culture ends up with some 34 topics. तो अगर आप सोसाइटी और कल्चर के बारे में जानते हैं, आप अपने देश के बारे में और बाकी देशों के बारे में उसको कंपेयर कर सकते हैं, तो भी आपको बहुत फायदा होगा. फिर है एथिक्स एंड मोरालिटी. Ethics and morality, that doesn't do so well, but still you get about 20 topics from here. Then there is something called education. Education does not so well. इसमें कुछ आपको 12 टॉपिक्स ही अभी तक मिले हैं. Then you come to philosophy and hypothetical situations. इसमें आपको करीब 30 टॉपिक मिल चुके हैं. तो ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो अगर आपके पास फिलोसफी और हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस आते हैं, so it means that you should have a basic understanding of philosophy. So like I talked about Descartes, cogito ergo sum, where he says the ultimate truth is that you are a human being. अब ये पुरानी वेस्टर्न फिलोसफी है. एक नीचे की फिलोसफी है. नीचे की फिलोसफी क्या है? That we should only work towards what gives us the greatest pleasure of the greatest number. Again, a utilitarian concept. तो utilitarian concept में आपकी बहुत सारी चीज आती है. इनफैक्ट द होल कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एंड आवर वर्क टुवर्ड्स इक्वालिटी is embedded in the philosophy of utilitarianism, which is the greatest good of the greatest number. We all seek pleasure and avoid pain. That is the basic philosophy. So आप utilitarianism के बारे में थोड़ा बहुत पढ़िए. Then you have somebody like Immanuel Kant, who believed in the concept of free will. So what does Immanuel Kant say? He says that anything will be correct and only that will be the truth which has a backing to it, which is involved in ethics. तो अगर आप अपनी ड्यूटी सही कर रहे हैं, और ये कांट की फिलोसफी है, आप पढ़िए. ही इज अ जर्मन फिलोसोफर. ही रोट मेनी इयर्स अगो, बट उसकी फिलोसफी को पढ़ना जरूरी, क्योंकि बहुत से क्वेश्चंस आपके ड्यूटी से रिलेटेड आते हैं. एज अ सिटीजन ऑफ द कंट्री, व्हाट डू यू चूज?
So when he says that your morality is only defined by your duties, or that the means never justify the ends. Now, means don't justify the ends is the only, not only the philosophy of Kant, it is also the philosophy of Gandhi. तो अगर आप अपने देश के बारे में जानना चाहते हैं तो गांधी जी को पढ़ना आवश्यक है. यदि आप गांधी जी को नहीं पढ़ते तो आप अपने एनवायरनमेंट के बारे में, आप अपने नेशनल मूवमेंट के बारे में, आप अपनी एथिक्स के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते. I started off with a jurist called Nani Palkhiwala. Nani Palkhiwala has dominated the Indian scene in the field of law and in the field of jurisprudence for almost more than a century. And he passed away in 2002. And Nani Palkhiwala, in We the Nation, he says that I'm not so worried about the corruption in this country, but I'm more worried about the apathy of the citizens of the country towards this corruption. अब ये जो वो कहता है और उसके बाद आपको इसका एक ऐसे टॉपिक आता है कि करप्शन उतनी बड़ी चीज नहीं है, जो करप्शन हो रहा है वो तो हो ही रहा है. ज्यादा बड़ी चीज क्या है? आपकी अपैथी, आपका एटीट्यूड कि चलो सब चीज ठीक है, जो है हो रहा है वो सब अच्छा है. That attitude you need to change. So again, Sir Walter Scott said that you should have the courage to speak the truth. And if you do not have this quality, then no other quality matters. Why does Walter Scott say this? He says, अगर आप सच बोलने के लिए साहस नहीं रख सकते, यदि आप ये साहस नहीं रख सकते कि आप सच बोलें, तो फिर आपके पास और कितनी भी क्वालिटी हो वो कोई मायने नहीं रखते, क्योंकि वो आपके देश के लिए मायने नहीं रखते. So these are some of the people. If you are going to do English literature, you're going to write an essay in English, you cannot do without Shakespeare. So what is there in a name? He says a rose is a rose is a rose. वो चाहे आप कोई भी फ्लावर, आप उसको किसी भी नाम से पुकारे, उसकी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. बट आपको उसके बारे में whatever he says this, the lady doth protest too much. मतलब ये लेडी बहुत ज्यादा शोर करती है. उसका क्या मतलब है कि ये लेडी एक डिनायल मोड में. अगर आप उसके कोटेशंस पढ़िए, he talked about the 7 stages of man, जहां पे वो बार बार कहता है कि पहले वो एक बच्चा होता है जबकि उसको कुछ समझ में नहीं आता, बाद में वो बड़ा हो जाता है. तो जो उसकी स्टेजेस ऑफ लाइफ हैं, आप उसके बारे में पढ़िए. Read people like Freud, again, who worked on the principle of the greatest good. मतलब every week we seek pleasure and avoid pain. That is his philosophy. Then from Freud you go to another person called Adler. जब आप ये sentences सुनते हैं ना, this person is suffering from an inferiority complex, or this person is suffering from a superiority complex, or the concept of a super conscience. All these are works of Adler. Another very good writer is Erikson. Another very good writer is Maslow. Maslow has written a lot about humanism. आप अपनी philosophy पे आ जाइए, you will be reading some bits about Ramanuja. Read about Shankara's Advait. ये सारी चीजें हैं जो आपकी thinking process को help करेंगी. तो अगर आप इन चीजों से अपने आप को वाकिफ रखेंगे तो आप अच्छा करेंगे. जब भी पॉलिटिकल साइंस की क्लास होती है, सबसे पहले स्टूडेंट्स को क्या पढ़ाया जाता है? फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स. फंडामेंटल राइट्स जो आपके पास है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो हमें अचीव करना है. तो इस देश का उद्देश्य क्या है? इस देश का उद्देश्य डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को लाना है. तो आपके जो ड्यूटीज हैं, जैसे आपका जो 42nd अमेंडमेंट हुआ, 42nd अमेंडमेंट में आपके लिख कर आ गया कि आपको अपने पर्यावरण को संभालना है, जो कि 1992 के ब्रूसलेट कॉन्फ्रेंस में डिसाइड किया कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है. हम तो ऑलरेडी 1976 में कह चुके हैं कि हमें अपने पर्यावरण को संभालना है. यदि आप प्रोजेक्ट टाइगर पढ़ते हैं तो आप अपने एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ते हैं. यू गो टू योर प्रीवियस ईयर्स. जब आप हिस्ट्री की पढ़ाई कर रहे हैं तो आप एंशिएंट इंडिया में क्या पढ़ रहे हैं? वी आर स्टडीइंग दैट वी हैव टू रिस्पेक्ट नेचर. हम आज रिस्पेक्ट नेचर करें क्योंकि अमेरिका कह रहा है, क्योंकि यूएनओ कह रहा है, बट हमारे देश में क्या कहा जाता था वो हमको पता नहीं. तो वो आपको पता होना चाहिए. आपकी वैल्यू सिस्टम क्या है? आप ये नौकरी क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि आपको पैसे बनाने, क्योंकि योर हाई ऑन नीड ऑफ पावर. अगर ये दोनों चीज आपको परिभाषित करती है, इसमें कोई गलत नहीं है, तो वो आपके एसे में रिफ्लेक्ट होगा, आपके एथिक्स के पेपर में रिफ्लेक्ट होगा. तो आपको अपनी सोच को भी कहीं कहीं बदलना है. तो आई थिंक whatever I think I'm writing that. ये स्टीफन किंग ने कहा ना, that whatever I think I write. तो अगर जो मैं सोच रही हूँ वो ही मैं लिखूंगी. तो
तो यदि आप अच्छा सोचेंगे, आप अपने वैल्यू सिस्टम पे रिफ्लेक्ट करेंगे, आप अपने इमोशंस को पॉजिटिव रखेंगे, आप अपने गोल्स को पॉजिटिव रखेंगे, तो आपके ऐसे में मदद मिलेगी और आप एक अच्छा ऐसे लिख पाएंगे. Other than this, there will be another good number of questions on economics. तो आप इकोनॉमिक्स पे को पढ़िए, इकोनॉमिक सर्वे को पढ़िए, आप गवर्नमेंट की सारी स्कीम्स के बारे में पढ़िए. पर अब आप गवर्नमेंट की स्कीम्स के बारे में पढ़ेंगे तो उससे भी आप नहीं लिख सकते. आप वहां पर दे आर नॉट आस्किंग यू about your Mahatma Gandhi employment yojana or Ujjwal yojana. They're not asking you about that. They're asking you what is the concept behind it. That's all. वो policies है, आप उसको mention कर सकते हैं. जैसे आप, मैंने आपको कहा ना कि आप sustainable development की definition लिखना चाहिए, लिखिए. पर आप अपनी सिंपल इंग्लिश या हिंदी के शब्दों में क्या कहना चाहते हैं, आपके लिए वो क्या मीनिंग रखता है, वो आपको अपने ऐसे में लिखना है. सो ऐसे will be very individually driven. That is another thing that I want to say. Then current development takes the ice. The icing on the cake is your current development, where you get about 40 topics. If we are going in from 2007 onwards, so current development अगर आप पढ़ते रहेंगे तो इसमें से भी आपको बहुत कुछ मिलने की संभावना है. There are politics and administration. तो फेडरलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, जिसमें आपकी वाटर शेयरिंग, बिजली शेयरिंग, आपकी जीएसटी सब आती है. तो पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन पे भी गुड 24 टॉपिक्स आ चुके हैं. तो आप इसके बारे में भी आप थोड़ा बहुत देख सकते हैं. देन दे हैव टॉक्ड अबाउट, मैंने करंट डेवलपमेंट्स में आपका जो सोसाइटी से रिलेटेड, लाइक फॉर एग्जांपल दीस डेज देयर इज अ लॉट ऑफ टॉक अबाउट नारकोटिक्स. Now, when there is a talk about narcotics, you have to be knowing the legal angle. आपके पास क्या rules है, क्या regulations है, and then somewhere along the line, you have to talk about how the families are shaping up. What is the discrepancy in income? How this discrepancy is getting reflected in our society? What is the political agenda which is going on? Now, you cannot say that it was a political agenda to get a specific person behind bars. You cannot write that, but at the same time, you have to write that we must be conscious about our rights and duties. And when implementing any policy, this should be on the forefront that rules are not broken. I hope I have taken a bit of your time. We were thinking we were going to finish this off in half an hour. We will do another class on essay. But अभी आप मुझे ऐसे लिख कर बताइए कि आप कैसा ऐसे लिखेंगे. मैं आपको टॉपिक दे रही हूँ, जो टॉपिक्स अपने पास है, या आप अपना टॉपिक चूज कर लीजिए. आप उस पे मुझे लिख कर दीजिए. आई डोंट वांट 1000 वर्ड्स. आप मुझे पहले से 500 वर्ड का एक ऐसे लिख के दीजिए, और मैं आपको एक टॉपिक दे रही हूँ. आप अपने आप से भी टॉपिक चूज करके लिख सकते हैं. आप इसको टेलीग्राम पे भेज दीजिएगा, ये मेरे पास अपने आप आ जाएगा. हिंदी वाले हिंदी में लिखे, अंग्रेजी वाले अंग्रेजी में लिखे, इसमें कोई फर्क नहीं होगा. कल्चर इज व्हाट वी आर. Okay, so I'm writing this for you. Culture is what we are. Is what we are. Okay? And civilization is what we have. Civilization is what we have. अपने साथ ऑनेस्ट रहिएगा. जो आपको एक बार में पढ़कर समझ में आए कि आप इसके बारे में क्या लिखना चाहते हैं, वो आप लिखिए. मान लीजिए 500 शब्द से कुछ कम भी है, कोई बात नहीं. आप फर्स्ट इंस्टेंस में उसको कैसे लिखेंगे वो देखिए, और फिर आप थोड़ा उसके बारे में पढ़ के फिर लिखिए और फिर भेजिए. और इससे ज्यादा नहीं मुझे चाहिए आपको. मैं नहीं चाहती कि आप बहुत ज्यादा उसमें इनग्रॉस होके लिखें. कल आप लोगों का टेस्ट है, टेस्ट अच्छा कीजिएगा. ऐसे का टॉपिक लेने का ही मतलब ये था कि आपके ऊपर कुछ प्रेशर ना पड़े अपनी पढ़ाई को लेके. But I want you to do this topic, or you can choose any topic from the list of essays and write up 500 words on it. That should be good enough. Thank you so much for your time. Thank you.